Okay, very well then. So we are back with another lecture in the series that we were encountering, the fundamental physics, and we were taking care of magnetism in our second run of the series. So today's class is a little more on the practical implementation of magnetic effect of electric current that we have been seeing, and it is going to involve some concepts which are not easy to explain just by writing down some text or just by drawing a diagram. So I have tried to incorporate some videos that I've looked up on the internet, and they were they were able to deliver these concepts that a few of them we are going to study, and we have been seeing them. We have been reading about them in our previous classes, and also in our electricity series. We were uh, dealing with the initial parts of magnetism there as well. So we are going to see all those magical effects of magnetism in action today. So as you can see, we are at we're still at the class 10th milestone in our timeline, and we are still dealing with the chapter 13 from the NCERT syllabus, from the NCERT books, and you can always go back and look up to the concepts that we are studying here. So if we look back to the previous class that we had, it was first in the series of the class 10th syllabus that we are dealing with, and we landed upon a concept, namely the Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule क्या था? एक simple method to deal with these three terms written here. आपकी जो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हैं, they can point out the direction in which one of or all of these physical quantities are pointing at. So the left hand Fleming's rule always gave you the force. The thumb will always be in the direction the force is going to be applied or generated by an apparatus which is going to produce the magnetic field and the effects of magnetic phenomenon. So we are going to watch a video, and I just want you guys to write in the chat box whether it is visible and whether the video is playing fluidly or not. So I'm playing it. Just tell me. I have muted the audio, so don't worry about that. Just tell me if the video is playing or not. Okay, very well. So we'll just go through this video then. There we can see the fingers of the left hand are being pointed out, and this is the real implication of the left hand rule. The middle finger points to the direction of current, as we can see here, this part here, and this cylindrical apparatus or body corresponds to the it can be any conductor, and we have been dealing with current carrying conductors, which are wires in our cases. So let us say it's a wire, and the current I is flowing in this direction in that wire. So the middle finger will be aligned towards the direction of current, and then it was drawn beforehand that the field of magnetism, the magnetic field, was going towards the left side. And we have also known a rule which is the right hand thumb rule. It says that in a current carrying conductor, the field's direction is always perpendicular to the direction of current. तो ये अगर हम thumb इस direction of current की तरफ रखते हैं, तो हमारी fingers जिधर curl हो रही है उधर direction होता है magnetic field का. So
the magnetic field is towards the left, and in this case the thumb points towards the top axis, the uppermost axis, and that is going to be the direction of force. जो force लगेगी इस magnetic effect की वजह से जो force generate हो रही है वो ऊपर की तरफ point करेगी. Let us just continue the video. Mention किया जा रहा है कि the direction of field is given or pointed out by the index finger. The middle finger points towards the direction of current, and resultingly, if all these are perpendicular, then the thumb will always be directing towards, will be pointing towards the direction of force. And this was the scientist, Mr. John Ambrose Fleming, who made this discovery that there is a relationship between the different directions of different quantities here, and hence we can get a resulting direction of the force that is being generated in all of this. तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का. एंड ये वीडियो से आई गेस थोड़ा ज्यादा इजी पड़ा होगा समझना. पहले जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में बताया था तो सीखा था इसके बारे में, तो उतना शायद आइडिया नहीं लग पा रहा हूँ. मैं कैमरे के थ्रू दिखा रहा था, वो 3 डायमेंशनल तो होता नहीं, बट यहाँ पे बिकॉज इन्होंने एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बना के दिखाया वो 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से, जिससे आई गेस कूल Fleming left hand rules, yes. Now let us come to the topics that we are going to deal with in our today's lecture. Fleming's left hand rule was from the previous lecture, but we were not able to grasp that concept in a dynamic way in the previous lecture, so I chose to start with that. Now the first implementation, and probably the most used implementation of the effect of magnetism in our lives, is in the form of a motor. जो अप्लायंसेस हमारे घर में, इसके बारे में हम काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं, जितने भी रोटेटिंग अप्लायंसेस हैं वो सारे ही इस मैग्नेटिज्म के रोटेटिंग एबिलिटी का यूज करके हमें वो इफेक्ट देते हैं. जैसे मैकेनिकल एनर्जी, हमारा फैन जो टर्न करता है, मिक्सर ग्राइंडर्स हो गए, ड्रिल मशीन्स हो गई, ये सारे कुछ इसी अंडरलाइन कॉन्सेप्ट पे रिलाई करते हैं. सो लेट अस जस्ट गो थ्रू द बेसिक डेफिनेशन. So it's not even a definition, it's just a way of telling what a motor actually is fundamentally. An electric motor is a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy. ये बहुत ही basic fundamental class 6 तक की साइंस का definition ही है. It is a rotating device which converts the electrical energy into mechanical energy. और यही है कॉन्सेप्ट पूरी एनर्जी का इस यूनिवर्स में, कि वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती रहती है. एंड समटाइम्स इन दैट कन्वर्जन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, समटाइम्स इन दैट कन्वर्जन एनर्जी डिसिपेट होती है. एंड जो इफेक्ट्स हमें यूजेबल इफेक्ट्स हमें डिराइव होते हैं इन सभी फिनोमेनन से, वो जनरली इसी इंटरमीडिएट स्टेट्स में होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो करते हुए हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन when we use that electrical energy into some sort of transformation, उसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, या हीट एनर्जी में, या फिर हीट एनर्जी के मैकेनिकल एनर्जी से विंड एनर्जी में, या फिर किसी भी और थर्ड डिराइव्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो वो हमारे काम आती है. डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी का कुछ यूज नहीं है, आप छू लीजिए तो you're gone. But if used and if harnessed through a certain appliance, it can be useful for us. Electric motor is used as an important component in electric fans, refrigerators, mixers, washing machines, computers, MP3 players, etc. तो ये हम जान ही चुके हैं. Now this is the basic diagram that NCERT suggests
us to read or to look at, ये नॉर्थ एंड साउथ जो है ये हमारे वही बार मैग्नेट के पोल्स हैं जो अभी हम देखते आ रहे थे कि where should I draw this? जो बार मैग्नेट था हमारा, तो हमने देखा था कि नॉर्थ से निकल के साउथ में फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो आती जाती हैं, और साउथ में फिर वो अंदर ही अंदर एक क्लोज सर्किट कंप्लीट करते हुए नॉर्थ की तरफ चली जाती हैं. एंड इन दिस केस यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ ये हैं, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं. सॉरी मैंने एकदम स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाया, बट नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट करती हुई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं. अगर वो ऐसे जा रही हैं तो कुछ तो वो इफेक्ट डालेंगी. यहाँ पे इसके बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये कॉइल है, तो कुछ तो ऐसा वो कर रही होंगी जो इफेक्ट डालेगा. और अभी हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल देखा है, तो उसके थ्रू अगर हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो कराया जा रहा है इसमें, ऐसे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो कुछ हम बता पाएंगे कि फोर्स लग रहा होगा किसी डायरेक्शन में. तो अगर इस वाली लाइन को देखें, यहाँ वाली को, अगर इसमें आप लोग अपनी फिंगर्स इस डायरेक्शन में रख के देख सकते हैं, अगर इधर की तरफ मिडिल फिंगर आपकी पॉइंटेड है एंड फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, ओह सॉरी माय मिस्टेक, इट्स ऑलवेज साउथ नॉर्थ इनसाइड. तो ऐसे अगर जा रही है ना, आपकी इंडेक्स फिंगर इधर की तरफ पॉइंट करे, इंडेक्स फिंगर इधर, और इधर हमारा करंट था, तो अगर हमारी मिडिल फिंगर इधर पॉइंट कर रही है, तो ऐसे में कुछ ऊपर की तरफ निकलती हुई फोर्स आएगी, जिसको हम ऐसे दिखा देते हैं, बाहर की तरफ निकलती हुई फोर्स. तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पे ऊपर, इसको ऊपर की तरफ पुश करते हुए फोर्स आएगी कहीं ना कहीं से इसमें. तो हो सकता है कि ये ऐसे जो एक कॉइल बनी हुई है वो ऐसे उठ जाए ऊपर की तरफ. एंड बिकॉज ये एक ऐसे स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है जो इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ना जाने देगा, उस पे उसके ऊपर टाइड है वो, तो वो ऐसे उठेगी सीधा, फिर उसके बाद वो टर्न होगी और वो घूमने का मोशन, यही रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्जन है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का. तो देखते हैं इस वीडियो के थ्रू समझते हैं हाउ दिस मोशन इज इन एक्शन. यहाँ पे कुछ सिंपल पार्ट्स मेंशन किए हैं इस पूरे apparatus के. वो हमें जानना उतना जरूरी नहीं है क्योंकि हम कभी खोल के देखने वाले नहीं है अपने अप्लायंसेस को, बट हमें उसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट बस समझना है. मैग्नेट है, ये दिख रहा है हमें, हम आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं. ये एक पूरा सर्किट है जिसके हम कंपोनेंट्स काफी टाइम से जान पढ़ते आ रहे हैं कि एक सोर्स होता है, कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, एंड देन एक लोड होता है कोई एट द एंड. तो यहाँ पे, यहाँ से एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है इस लोड में, और this is the type of loads that we omitted in our first series इलेक्ट्रिसिटी वाले में. जो इंडक्टिव लोड जो मैंने कहा था वही है ये इंडक्टिव लोड, जो कॉइल्स होती हैं जो सम फॉर्म ऑफ कन्वर्जन कर रही है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी का इनटू मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक इफेक्ट. वहां पे इंडक्टिव लोड नाम का टर्म यूज होता है. तो ये क्लोज सर्किट है. अब यहाँ से बैटरी के टर्मिनल से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ करंट. यहाँ पे हम जो क्वांटिटी से उसको डिनोट करना सीखे, वो आएगा इसके अंदर, इस कॉइल में वो फ्लो करेगा, एंड देन जो मैग्नेट है, मैग्नेट से यहाँ जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो फील्ड की रेज निकल रही हैं, दे विल exert certain force on that coil and वही इसे मूव करा रहा है. एक बार पूरी वीडियो देखते हैं, then we'll jump back to how it actually works.
अब ये जो हमारा डायग्राम एनसीईआरटी में हमें दिया गया है, जिसमें कुछ ABCD पॉइंट्स मार्क किए गए हैं एक क्वाड्रिलेटरल की तरह, एंड दीज X P Q and Y पॉइंट्स, यही चीज यहाँ पे भी दिखा रहा है कि अब यही डायग्राम को जस्ट एनिमेट कर दिया गया है यहाँ पे कि हाउ दिस इज इन एक्शन। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल है उसके थ्रू यहाँ पे फोर्स हमें पता चल रही है कि इस पार्ट में यहाँ जो स्ट्रेट करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन देखते हैं एक बार, हाँ ठीक है, इधर से यहाँ फ्लो हो रहा है और यहाँ से इधर निकल के आ रहा है। तो ये फोर्स लग रही है यहाँ पे डाउनवर्ड्स, एंड यहाँ पे फोर्स लग रही है अपवर्ड्स। देखें फील्ड लाइंस क्या डिनोट किए उन्होंने यहाँ पे। तो एक जो पार्ट में स्टार्टिंग में कह रहा था, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को लेकर मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे। वो जब हम एक बार मैग्नेट को देखते हैं तब ये चीज होती है कि नॉर्थ से साउथ, ये रूल है कि नॉर्थ से निकल के लाइंस साउथ पोल में टर्मिनेट होती हैं, यही एजम्पशन हमारा है। लेकिन बार मैग्नेट क्योंकि वो एक सिंगल बॉडी है, मतलब एक यूनिफाइड बॉडी है, तो अगर ये क्लोज लूप कंप्लीट होना है तब वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही है उसमें। लेकिन अगर दो डिफरेंट पोलैरिटी के मैग्नेट्स रखे हुए हैं थोड़े क्लोज डिस्टेंस, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो ये जो हमारा assumption है कि the magnetic field lines always get generated at the north pole and get terminated on the south pole, यही हमारा कन्वेंशन रहेगा हर जगह। तो यहाँ पे जो शुरुआत में मैंने फील्ड लाइंस डिनोट कर दी थी साउथ टू नॉर्थ, बाय मिस्टेक सॉरी, तो वो नहीं होना चाहिए। फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाएंगी। बार मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते, तो अजम्पशन था एक, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट, ये बार मैग्नेट नहीं है, टू डिफरेंट पोलैरिटी के मैग्नेट्स रखे हुए हैं एंड दे विल ऑलवेज फॉलो दिस कन्वेंशन। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि नॉर्थ से साउथ ही जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर यहाँ पे हम अपना क्या कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड हो गया, ये हो गया आई। तो लेफ्ट हैंड रूल से क्या कहते हैं फोर्स लगनी चाहिए, करंट का डायरेक्शन ये करके कराया, and it should always go towards that. ठीक, एकदम सही। सुबह ये रहा हमारा डायग्राम, इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में करंट है, और फोर्स लग रही है हमारी इस डायरेक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है हमारी इस डायरेक्शन में। तो मिडिल फिंगर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स, मतलब इनसाइड द स्क्रीन, यहाँ पे ये मिडिल फिंगर हो जाएगी, एंड फिर हम अपने हाथ को यूं रोटेट करेंगे क्योंकि
फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है। स्क्रीन के अगर आप अंदर देख रहे हैं तो ये करंट ऐसे जा रहा है एंड फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जा रहा है इसमें यहाँ पे ऐसे। तो द थंब इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, इसलिए यहाँ पे एक डाउनवर्ड्स फोर्स लग रही थी और ये यूं घूम रहा है पूरा कॉइल। वी जस्ट प्ले इट वंस। यस, तो एकदम ही इस पॉइंट पे रोकते हैं। यस एग्जैक्टली, तो यहाँ पे फोर्स जो है डाउनवर्ड्स लग रही है एंड दिस इज हाउ आवर फ्लेमिंग्स रूल इज इन एक्शन। और ऑन द ऑपोजिट साइड करंट का डायरेक्शन ऐसे है अंदर की तरफ एंड फोर्स इज ओवर देयर, तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इधर में ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है। एंड बिकॉज ये ऐसे apparatus से कनेक्टेड है जो इस फोर्स को कैंसिल आउट नहीं होने दे रही है, इस फोर्स को एक रोटेटिंग मोशन की तरफ इंक्लाइन कर रही है, तो इसलिए ये पूरे टाइम चलते जाते हैं। और ये जो ब्रशेस लगे हैं कार्बन ब्रशेस, ये थोड़ा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। एसी एंड डीसी करंट, टू टाइप्स के करंट्स होते हैं, तो उसके बीच में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन अच्छे से तो नहीं सीखा है, दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आवर क्लास 10 सिलेबस। लेकिन जितना हमें सीखना था एसीडीसी के बारे में वो यही था कि छोटे डिवाइसेस, छोटे अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें डीसी करंट का यूसेज ज्यादा है एंड जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है दूर से ट्रैवल करके इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स पे जो इलेक्ट्रिसिटी जिस फॉर्म में आ रही है वो एसी करंट के फॉर्म में आती है। एंड इन दी नेक्स्ट क्लास वी विल बी टेकिंग अप सब क्वेश्चंस एज वेल, तो ये एसी डीसी के बीच का डिफरेंस और थोड़ा जनरल लाइफ में जो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए वो सब हम देखेंगे जरूर से। आई होप दिस इज क्लियर, बट अगर कुछ क्वेश्चंस हैं। यस, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। मोशन इज ड्यू टू टॉर्क, बिल्कुल सही, बट आई डोंट नो इफ टॉर्क, अभी रोटेशन आपने यश की क्लास में पढ़ा है कि नहीं, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट टॉर्क एट द मोमेंट। मे बी मी एंड यश कैन टुगेदर टेक अ क्लास समडे जिसमें हम टॉर्क समझाएं, लेकिन इट इज यू नो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन जो हमें जानने की जरूरत नहीं है इन आवर केस, so UPSC doesn't need this detailed information, but बस ये जो रूल था हमारे लेफ्ट हैंड का वो काफी हेल्प करता हमें जानने में कि किधर, मतलब अगर कोई मोटर घूम रही है एक तरफ तो क्यों हो रही है, या फिर अगर हमें ये चीज पता है कि इट इज रोटेटिंग टुवर्ड्स जैसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो हमें लेफ्ट हैंड रूल से अपने ये पता है कि थंब का जो डायरेक्शन है उधर फोर्स लग रहा है। तो अगर कोई मोटर ऐसे मूव कर रही है तो हम ये बता पाएंगे कि करंट किधर फ्लो हो रहा है, उसमें कौन से डायरेक्शन का करंट जा रहा है एंड वाइस वर्सा। That being said, let's move on to the next topic, and that says electromagnetic induction. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम इलेक्ट्रिसिटी वाली क्लास में भी सीखे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक बेल का कॉन्सेप्ट जाना था। उसमें पहली बार इंडक्टिव लोड नाम की चीज सीखी थी हमने, और वैसे ही कुछ यहाँ दिख रहा है, सोलेनोइड कॉइल, कॉइलिंग अप ऑफ वायर अराउंड अ मैग्नेटिक कोर या ऐसा कुछ, वैसे ही कोई चीज हम यहाँ सीखने वाले हैं, तो उसको भी एक्शन में देखेंगे कि हाउ दैट टेक्स प्लेस। एंड it is just said that we have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is perpendicular to the magnetic field, it experiences a force. ये perpendicular जहां भी वर्ड आए आपको समझना है कि ये मैथ्स में आप ज्योमेट्री सीख रहे हैं, तो उसमें राइट एंगल एक चीज होती है। जब किन्हीं दो सरफेसेस के बीच में राइट एंगल बनता है तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अब ये राइट एंगल तो हो गया दो एक्सिस में, एक्स और वाई में, यही राइट एंगल ऐसे भी हो सकता है, यही राइट एंगल ऐसे भी हो सकता है जेड एक्सिस में, तो एक एक्सिस ये वाली भी राइट एंगल बनाती है सबके बीच में। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में भी हमारी फिंगर्स जो है राइट एंगल्स बना रही हैं दूसरे से, तो इसलिए हम वो इफेक्ट स्टडी कर पाए जिसमें फोर्स लग रही थी किसी बॉडी पे विच वाज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब एक नई चीज है।
इंडक्शन को थोड़ा ब्रेक करते हैं. इंडक्शन होता है एक फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कह सकते हैं. इंडक्शन इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ये एक मोड है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का, जो एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको जिस जो होता है इंड्यूस. अगर कहीं भी इंड्यूस लिखा होगा मतलब इसको और एक और इंग्लिश वर्ड से रिलेट करके कह सकते हैं इन्फ्लुएंस. अगर हम किसी की बातों से प्रेरित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हम वो चीज करने लगते हैं, हमारे अंदर वो चीज इंड्यूस हो जाती है. सो दैट इज हाउ इंडक्शन शुड बी अंडरस्टूड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस डालता है मैग्नेट किसी चीज पे कि वो कन्वर्ट हो जाए मैग्नेट में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगे वहां पे या फ्लो होने लगे. तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे. लेट्स गो थ्रू दिस वीडियो. So this is an experiment which is going to demonstrate the phenomenon of electromagnetic induction. अब जब हमने इलेक्ट्रिक बेल पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि जो कोर यूज हो रहा है यहाँ पे, द कोर ऑफ द कॉइल, ये कॉइल हो गई हमारी, और जिसको सोलेनॉइड भी कहते हैं. एंड जो कोर होता था उसका वो आयरन का बना हुआ था. तो वो क्या कर रहे थे हम कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे इसके थ्रू. यहाँ पे ये मीटर ना होके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे, तो वो फ्लो कर रही थी यहाँ पे. एंड ये जो सोलेनॉइड था, ये जो आयरन कोर था इसका, ये मूव करा. जब इसमें हम करंट पास करें तो वो मूव करने लगता है, जब करंट ऑफ कर देते तो वो मूव नहीं करता. या फिर वो मैग्नेट पे कन्वर्ट हो रहा था, या फिर मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा था, या फिर हट जा रहा था. तो वुडन सिलेंडर यहाँ यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो कॉइल है इससे कोई चीज, मतलब ये इसके कांटेक्ट में रहेगा इस कोर के, तो वो डिप्लीट ना हो, या फिर वो निकल के चली ना जाए किसी आयरन से बनी चीज में, वो डिसिपेट ना हो, किसी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाली चीज से डिसिपेट ना हो. सो अ वुडन सिलेंडर इज बीइंग यूज्ड क्योंकि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करनी है इसमें. यहाँ पे एक हम एक्सटर्नल मैग्नेट लेके आएंगे विच इज गोइंग टू इंड्यूस सम इफेक्ट इनटू दिस कॉइल. और ये एक नया यहाँ पे हम एक नया इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिसको कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर. ये एमीटर जो हमने एक चीज पढ़ी थी, ऐसे करके देख रहे थे हम, ए लिखा हुआ था अपने सिंबॉलिक वाले चार्ट में. So ammeter was an instrument which it is an instrument which measures the amplitude of current. करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता था. बट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इज जस्ट गोइंग टू डिनोट द फ्लो ऑफ करंट. वो बस ये बताएगा कि फ्लो हो रहा है कि नहीं, और ये डायरेक्शन जो है इसका उसको बताएगा. अगर करंट इस तरफ फ्लो करेगा तो ये हल्की सी इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी नीडल, और करंट अगर इस तरफ फ्लो करेगा तो ये नीडल इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये नहीं बताएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है. इट इज जस्ट गोइंग टू टेल अस कि वेदर करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट और नॉट. So let us see this in action. When a bar magnet, yeah, when a permanent magnet is just put there, अगर वो सिर्फ वहां रखा हुआ है कॉइल के आसपास या किसी ऐसे अपैरेटस के पास, तो कोई चेंज नहीं आ रहा. जो चीज जैसी है वैसी है, इस कॉइल में कोई चेंज नहीं आ रहा. लेकिन यहाँ पे हमने देखा जब ये मूव किया, when this magnet moved, then there was a deflection in the galvanometer. या v जो लिखा है ये आप लोग यश सर की क्लास में पढ़ रहे हैं. v इज वेलोसिटी, v स्पीड है और डायरेक्शन दिखा रहे हैं उसका किधर जा रही, तो वेलोसिटी कह रहे हैं. और फिर जब वो अवे मूव कर रहा है तो एक दूसरी तरफ
करंट मूव होता हुआ दिखा। तो यहाँ पे एक इन्फेरेंस दिखता है हमें, इफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, ये पूरा apparatus से current flows in opposite direction of the solenoid, and if the magnet moves towards the solenoid, current flows in the direction of the solenoid. Thus the galvanometer deflects to the left and right respectively. ये यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी भी दिखाया है इसमें कि जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन था हमारे कॉइल का एंड उसकी उससे अवे मूव किया तो कुछ करंट फ्लो हुआ जो पीछे की तरफ गया, एंड व्हेन द पोलैरिटी वाज ऑपोजिट एंड अ बार मैग्नेट वाज प्लेस्ड देयर, तो वो इट वाज इन अ मूविंग कंडीशन टुवर्ड्स द सोलेनॉइड, तो फिर वो सोलेनॉइड के डायरेक्शन में मूव किया करंट. गैल्वेनोमीटर शोज जस्ट द मूवमेंट ऑफ करंट. एंड वाइस वर्सा, पहले के हमने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ सोलेनॉइड का डायरेक्शन बदला था एंड मैग्नेट को हम मूव करा रहे थे. अब अगर मैग्नेट का ही पोलैरिटी मैग्नेट को उल्टा करके हम लगाए तो क्या हो रहा है वो दिखाया है यहाँ पे. सो दीज आर जस्ट एक्सपेरिमेंट्स कि क्या हो रहा है. हमें इससे टेक अवे ये लेना है कि whenever a magnet moves around a solenoid or a coil, then some current is generated into that coil. So very brilliant scientist Michael Faraday, उनको भाई फादर कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि कैसे कॉइल्स के अराउंड मैग्नेट्स का बिहेवियर उनके उसमें कुछ इंडक्शन इंड्यूस कर सकता है क्या. तो ये चीज पता चली थी कि हाँ ये हो सकता है. और इसी के कॉन्सेप्ट से आज जो हमारे घर बिजली आ रही है, जो जनरेट होती है बिजली थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, वो यही करती हैं. जो हीट जनरेट होती है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स या फिर न्यूक्लियर फिजन से जो हीट जनरेट होती है उससे कुछ स्टीम गैदर की जाती है पानी को बॉईल करके, एंड दैट स्टीम इज मेड टू फ्लो थ्रू वेरी टाइट प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम्स. और वो प्रेशर जो है स्टीम का दैट इज यूज्ड टू मूव सम टर्बाइंस. टर्बाइंस ही वो जनरेटर का पार्ट होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं. तो ये जो बड़े टर्बाइंस हैं, जो पावर स्टेशंस हैं या फिर छोटे डायनामोज, अगर आप लोगों ने अपने किसी स्कूल डेज के एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा तो वो यही है. उसके अंदर जो फ्री मैग्नेट्स होते हैं कुछ, वो जब घूमते हैं शाफ्ट के साथ तब वो इंड्यूस करते हैं करंट एक कॉइल के अंदर. एंड मोटर वही कॉन्सेप्ट यूज करती है कि जो हमने पहले अपने डायग्राम में देखा कि जब करंट फ्लो कराते हैं हमें कॉइल में और स्टेशनरी मैग्नेट्स होते हैं तो वो फोर्स लगा देते हैं उस कॉइल के ऊपर एंड वो मूव करने लगती है. यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स लीडिंग टू इंक्रीज करंट इन द कॉइल. अब ये एक बेहतर जनरेटर बनाने के कॉन्सेप्ट पे आते जा रहे हैं लोग कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज करें, इंक्रीजिंग द मोशन ऑफ द मैग्नेट, इंक्रीजिंग द एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स. ये अब धीरे धीरे हम मोटर से जनरेशन के कॉन्सेप्ट पे जाते जा रहे हैं. देख रहे हैं कि अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी को तो कन्वर्ट कर लिया मैकेनिकल एनर्जी में. अब क्या मैकेनिकल एनर्जी इस मैग्नेट को जो मूव करा रहे हैं उसमें हमारा मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है हाथ की. तो क्या इसको अगर हम यूज करें तो शायद सस्टेनेबल या सस्टेनिंग एनर्जी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अपने यूज में ला सकते हैं इस कॉइल के थ्रू. तो वही हो रहा है. When the magnet is moved towards the coil or away from the coil, magnetic flux changes. ये थोड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट हैं, ये हमें याद नहीं रखना है कि कैसे कैसे वो जनरेट हो रही है, लेकिन बस इतना याद रखना है कि हाँ कुछ हो रहा है, जनरेट हो रही है. मिस्टर फ्लेमिंग का फिर से एक बार जिक्र आता है. इन्हीं की वजह से हमें पता चलता है कि किधर फोर्स लग रही है, किधर
यू नो दो क्वांटिटीज का डायरेक्शन अगर हमें पता है तो तीसरी क्वांटिटी का हम डायरेक्शन डिराइव कर सकते हैं। एंड हाँ, तो इनका दिया हुआ एक और है रूल जो कि राइट हैंड से होता है। एंड जैसे हम लोग पेयरिंग पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पेयर्ड है, हैंडशेक करते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वैसे ही जो रूल्स हैं लेफ्ट एंड राइट थंब रूल्स, ये सॉरी हैंड रूल्स, ये मोटर और जनरेटर इन दोनों के कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं। एक मोटर ही जनरेटर का भी काम कर सकती है एंड वाइस वर्सा। तो अगर हमें जानना है कि किस तरफ रोटेशन किया जाए, किस तरफ फोर्स लगाई जाए तो किस तरफ का करंट बनेगा, वो हमें राइट हैंड रूल से मिलेगा। और हम अगर करंट फ्लो करा रहे हैं किसी ऐसे अपैरेटस में जो मोटर को रिजेंबल करता है, तो उसमें वो मैग्नेट्स किधर फोर्स लगाएंगे कि वो रोटेशन हो। तो जैसे हमारा पूरा शरीर बहुत सिमेट्रिक होता है, इफ वी आर टर्न्ड, मतलब अगर हम हाफ से डिवाइड किए जाए तो हमारा बॉडी काफी सिमेट्रिक होता है, एवरीथिंग डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट्स। तो वैसे ही ये भी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मोटर और जनरेटर, ये दो एक दूसरे की मिरर इमेजेस ही हैं। सिंपल चीज, इसे हमें बहुत ध्यान में नहीं रखना है। जनरेटर इज a little too much to understand maybe. Let us now go to the generator that is given in our NCERT. अब ये मैं फॉर ये सारे टेक्निकल टर्म्स को इवेट करते हुए सीधे चलते हैं। जैसे हमने मोटर का कॉन्सेप्ट सीखा था ऐसे टाइप के एक वीडियो, एनिमेटेड वीडियो से, वैसे अब हम सीखेंगे जनरेटर का कॉन्सेप्ट based on the phenomenon of electromagnetic induction, the experiments we studied just before this slide. Now we are going to understand how a generator works. Now as you can see in this video, अब एक mechanical energy, एक hand is now rotating the coil. अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रह गई जो इसे मूव कराएगी, अब एक मैकेनिकल एनर्जी का हम सोर्स यूज करके इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। And the bulb over at the far end of the circuit shows that electricity is being generated. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसे तो देखते नहीं आग से अपनी मूव करते हुए, उसके कुछ इफेक्ट्स देख सकते हैं। तो दैट बल्ब इज एन अप्लायंस दैट यूजेस द, मतलब दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट एनर्जी। अब यहाँ पे हम लोग अपना राइट हैंड रूल यूज करेंगे। जब हम जनरेटर्स की बात करते हैं तो हमेशा राइट हैंड रूल को यूज करके हम अपने जो भी वो थे क्वांटिटीज थे उनको डिफाइन करेंगे, उनका डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। ये हमारा करंट का डायरेक्शन होगा, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन होगा, और दिस इज ऑलवेज बी द फोर्स। अब इसमें हमें करंट नहीं पता है, हमें फील्ड का डायरेक्शन और हमें अपना फोर्स का डायरेक्शन पता है, क्योंकि फोर्स हम जनरेट कर रहे हैं। तो हमें तीसरा जो मिडिल फिंगर होगी, अब वो हमें बताएगी करंट किस तरफ फ्लो होगा इस पूरे सर्किट में। तो इट्स अ फन एक्सपेरिमेंट, इफ यू गाइस वांट टू डू इट देन इट विल बी फाइन। क्योंकि इतना डिटेल में जाके हम, मतलब वी विल गेन समथिंग बट नॉट एज पर आवर यूपीएससी सिलेबस। तो इतना जानना हमारे लिए जरूरी था। एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस हाउ दिस मोशन एक्चुअली टेक्स प्लेस, कैसे एक मोटर काम करती है इंटरनली एंड कैसे एक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। So just by going through this video, we can see that mechanical energy is somehow being converted, and that somehow is due to the magic provided by these two poles of the magnet and a coil, and the force that is making this whole apparatus rotate. इससे ये इन्फरेंस हमें मिलता है कि अगर हम ये जो रोटेशन है उसको दोनों डायरेक्शन में करेंगे, एक बार क्लॉकवाइज करके देखेंगे तो भी करंट फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो भी करंट फ्लो होगा, बस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एंड
यही डायरेक्शन से रिलेटेड मेन डिफरेंस है एसी एंड डीसी करंट्स में, डीसी और एसी फॉर्म्स ऑफ करंट में. डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ करंट. और ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसे ऑल्टरनेटिंग वर्ड में ही है उसके, क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट मीन्स ऑपोजिट ऑफ समथिंग या अदर वे ऑफ डूइंग समथिंग. तो ऑल्टरनेट करंट इज ऑलवेज ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द टू डायरेक्शंस. एक तरफ जा रहा है फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है. एंड ये जो यहाँ पे ब्रशेस लिखे थे, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रशेस 1 and 2. ये ब्रशेस ही मेक श्योर करते हैं कि इसमें से डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ करंट निकले, क्योंकि बल्ब हमारा जो है यहाँ पे ये हो सकता है डीसी बल्ब है, तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करते हुए करंट के बाद ही चलेगा, दूसरी डायरेक्शन में कर देंगे तो नहीं चलेगा. जो आपके एलईडीज होते हैं वो डायरेक्ट करंट से चलने वाले. ये जो फिलामेंट बल्ब्स होते हैं, 100 वाट वाले बल्ब आते थे येलो वाले, सीएफएल बल्ब हो गए, दीज वर्क ऑन एसी करंट. ये दोनों तरफ के करंट से चल सकते हैं. तो दिस वाज इट या. इफ यू मूव ऑन, जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कंक्लूजन जो जो आपने आज पढ़ा. बाय डेफिनेशन, a current carrying conductor when placed in a magnetic field experiences a force if the direction of the field and that of current are mutually perpendicular. Perpendicular means making right angles with each other. Then the force acting on the conductor will be perpendicular to both and will be given by Fleming's left hand rule. तो ये चीज हम जान ही चुके हैं और हमने विजुअल से भी देख लिया कि कैसे ये होता है. This is the basis of an electric motor. An electric motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy. अगर कभी डिफरेंस दिमाग में अगर आपको डिस्क्रिमिनेट करना हो बिटवीन अ मोटर एंड अ जनरेटर, तो ये लाइन को अगर आप याद रखेंगे तो इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा जनरेटर. An electric motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy, and a device that converts mechanical energy into electrical energy is a generator. The phenomenon of electromagnetic induction is the production of induced current in a coil placed in a region where the magnetic field changes with time. Induction, जैसे कि हमने जाना, is a form of transmission या exchange of energy. And induce वर्ड से हमने डिराइव किया इंडक्शन. इंड्यूस मतलब हमारे अंदर किसी चीज का प्रभाव पड़ जाए, किसी चीज का, किसी फोर्स का असर आ जाए हमारे ऊपर, देन दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड इफेक्ट कहीं कहीं हम यूज करते हैं जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में. सो इंड्यूस करंट भी हमने देख लिया कि एक मैग्नेट अगर मूव कर रहा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम जो लिखा है वो यही है. मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टेशनरी एक मैग्नेट रखा हुआ है कॉइल के आसपास, दैट फील्ड इज कांस्टेंट, कुछ चेंज नहीं आ रहा उसमें. लेकिन मान लीजिए जब उसे मूव करते हैं तो एक बहुत सिंपल चीज हमने जानी थी कि मैग्नेट सबसे उसकी फील्ड्स का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एम्पलीट्यूड होता है, जो इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है उनके सरफेस के पास. मान लीजिए अब ये मूव कर रही है तो दैट सरफेस, द क्लोजनेस of any object to that surface is now changing, hence this change of magnetic field is written. So the phenomenon of electromagnetic induction is the process of induced current in a coil placed in a region where the magnetic field changes with time. The magnetic field may change due to a relative motion between the coil and a magnet placed near the coil. अच्छा, ये लाइन का मतलब ये है कि आइदर आप मैग्नेट मूव करा लीजिए या फिर आप कॉइल को मूव करा लीजिए या दोनों को मूव करा लीजिए. तो कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिसमें फिक्स्ड मैग्नेट्स होते हैं, कुछ अप्लायंसेस होते हैं जिसमें दोनों चीजें रोटेटिंग होती हैं. बॉल बेयरिंग्स का यूज होता है बीच में दोनों के रिलेटिव मोशन लाने के लिए. दिस इज अ केस ऑफ इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग आप बेटर कैसे कर सकते हैं, मोर एफिशिएंट कैसे का प्लान्स को बना सकते हैं, उस केस में ये यूज होने का. भाई दोनों तरफ से अगर ताली दोनों हाथ से बज रही है तभी उसका इफेक्ट सबसे अच्छा है. एक हाथ ज्यादा बजाएगा तो वैसा इफेक्ट नहीं आएगा.
दोनों हाथ आपके बराबर फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ज्यादा इफेक्ट दिखेगा उस पर। वही चीज यहाँ भी है, अगर दोनों चीजें मूव करेंगी तो इट विल प्रॉब्ली प्रोड्यूस more electric current with less effort, and in some cases it might also not be that beneficial. If a coil is placed near to a current carrying conductor, the magnetic field may change either due to a change in current through the conductor or due to the relative motion between coil and conductor. The direction of the induced current is given by Fleming's right hand rule. एक चीज जो मैंने स्किप की वो मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाई क्योंकि वो थोड़ा सा एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट मुझे लगा यहाँ पे समझाने के लिए। मैग्नेट से हम जरूर समझ पा रहे हैं कि उसमें से कुछ ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं और वो एक कॉइल में कुछ इंड्यूस कर दे रही है मूव करने पे। लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि अगर दो कॉइल्स हैं तो दो कॉइल्स मान लीजिए, उसमें से कुछ करंट आ रहा है, इससे निकल रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है, इसमें से निकल रहा है, तो ऐसी दो कॉइल्स भी एक दूसरे पर मैग्नेटिक इफेक्ट ला सकती हैं। अगर एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरी कॉइल में वो इंड्यूस कर सकती है। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड को, एंड उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट हो जाने की वजह से इस कॉइल में करंट बन सकता है। तो अगर मान लीजिए इसमें करंट नहीं भी फ्लो हो रहा होता तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है इन सर्टेन डायरेक्शन। बट ये मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस करना कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही डायरेक्शंस और इसकी बातें आ जाती जो हम अ, शायद याद ना रख पाए और हमें शायद इतना काम भी ना आए। इफ इन माई एनकाउंटर्स विद क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन प्रीलिम्स या फिर किसी और एग्जाम में ऐसा कुछ आता है जिसमें ये कॉन्सेप्ट आता है तो फिर मैं जरूर दोबारा बताऊंगा। लेकिन in my humble opinion, I don't think that that concept needs to be taught in our scope of study. Then generator converts mechanical energy into electrical energy. It works on the basis of electromagnetic induction. ये हम जान ही चुके हैं. And this thing that is written in the last two parts of the class 10th NCERT book. The chapter 13 ends with this note that electricity in our domestic applications या electricity in our homes, उसमें यही इलेक्ट्रिसिटी वाले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वी रिसीव 220 वोल्ट्स। क्यों आता है 220? कन्वेंशन हमने आज पता किया था कि ड्यू टू us following the Britishers rule, we stuck with the 220 volt supply, and America turned to 110 volts. And this frequency 50 hertz आती है क्योंकि जो alternating current है that its direction changes 50 times in 1 second. उसका डायरेक्शन पूरा टाइम चेंज होता है। इसलिए कभी अगर आप बहुत ध्यान से आपने देखा हो जब वोल्टेज कम आ रही होती है घर में या कुछ ऐसा होता है तो फ्लिकर करती है आपकी कोई भी लाइट। अगर आप देखें ट्यूब रॉड हो गई कुछ हो गई तो वो वही होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही होती है तो आपकी आंखें देखना शुरू कर देती हैं कि बंद हो रही बुझ रही है, बंद हो रही बुझ रही है लाइट। तो करेक्शन करंट का क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो दैट अप्लायंस इज एक्चुअली स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ 50 टाइम्स इन अ सेकेंड। हमारी आंखें इसे जनरली नहीं पकड़ पाती, इसलिए हमें लगता है वो कंटिन्यूस फ्लो है, लेकिन कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ डीसी करंट में होता है, छोटे अप्लायंसेस वाला एलईडीज में होता है। जो भी एसी करंट पे रन करने वाले अप्लायंसेस है वो हमेशा मतलब उसमें करंट का डायरेक्शन पूरे टाइम चेंज होता रहता है। एंड व्हेन देयर इज सप्लाई ऑफ लो क्वालिटी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कभी कभार लो वोल्टेज सेटिंग्स में आती है हमारे घर बिजली, तब हम ये यू नो कंडीशन को विटनेस कर सकते हैं। लाइव वायर, ठीक है, ये कुछ जनरल नॉलेज की चीजें इसमें लिखी हैं। अगर आपने देखा हो अपने घर का मेन सप्लाई तो उसमें जो कन्वेंशन फॉलो होता है वायर्स के ऊपर जो कोटिंग होती है उसका, सो दैट इज दिस कि द सप्लाई ऑफ वायर दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेड इंसुलेशन, रेड कलर का जिसपे स्टिकर होता है या फिर रेड कलर का जिसपे इंसुलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द लाइव वायर।
और लाइव वायर वही जिसमें करंट आ रहा होता है एक तरफ से, एंड देन वन इज ऑफ ब्लैक इंसुलेशन, ब्लैक कलर का जो तार होता है या तार के ऊपर जो कोटिंग जिसकी ब्लैक होती है, दैट इज न्यूट्रल वायर. न्यूट्रल वायर ऑल्टरनेटिंग करंट का एक कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रल एंड लाइव, जिसमें डीसी करंट में भी हम हमेशा देखते हैं प्लस और माइनस वाली पोलैरिटी की चीज हमने पढ़ी थी. आप मान सकते हैं कि एसी करंट का रेड जो है प्लस है और ब्लैक जो है माइनस है. और the potential difference between the two is 220 volts. We are well versed with all of this concept, the concepts कि potential difference क्या है और polarity क्या है, plus minus क्या है. Third is the earth wire that has green insulation and it is connected to a metallic body deep inside earth. Because AC current that is being transmitted throughout our electricity systems has, it uses a lot of, it deals with a lot of electricity. and कभी कभार जो surges की हमने बात की थी कि 440 अगर आ जाए हमारे घर में तो काफी appliances वेस्ट हो बर्स्ट हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, एंड दे इट वुड रेंडर देम वेस्टफुल. तो उससे बचने के लिए ये अर्थिंग की जाती है. सेफ्टी मैकेनिज्म जैसे हम पढ़ रहे थे, फ्यूज की यहाँ पे बात लिखी है, फ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग सर्किट्स. ऐसे ही अर्थिंग वायर जो होता है वो ऐसा जो सर्जेस आ जाए इलेक्ट्रिसिटी के अगर उस सर्किट में, तो उनसे डील करने में हेल्प करता है. Yeah, so the earthing wire is also a safety mechanism when in cases of an electrical surge, it earths, वो उसका जो नाम है वही उसका काम भी है. इट एक्चुअली अर्थ में वो भेज देता है इलेक्ट्रिसिटी जो भी एक्सेसिव आ गई है उस सर्किट में, so that it does not damage the household appliances. कई घरों में ये दिक्कत होती भी है जब लोगों को किसी अप्लायंस को छूने पे झटका लग जाता है, या फिर अगर आपने कभी मेटालिक कोई चीज, नंगे पैर अगर आप खड़े हो और आपने अपने फ्रिज का स्टेबलाइजर या एसी का स्टेबलाइजर छू लिया, आपको कभी कभार झटके लगते हैं. तो वो वही होता है कि अर्थिंग अर्थिंग इन इन द होल सप्लाई सिस्टम, जो जा रहा है बिजली का तार आया है उस एसी के लिए, शायद उसकी अर्थिंग उतनी अच्छी नहीं है. इसकी वजह से जो भी एक्सेसिव करंट है वो आपका बॉडी के थ्रू पास हो रहा है, इसलिए आपको वो झटका लगता है. एंड yes, that is all that I had to discuss in this lecture. So thank you all. This is a wrap. It is a wrap for our fundamental physics series that was dealing with electricity and magnetism. I hope you guys were able to understand whatever concepts that I tried to teach you in this class. I hope that video or the few videos that we went through were actually beneficial, and if this is a good way of teaching, then I will always incorporate. आप कुछ suggestions लिखिएगा chat box में. If videos were a better way to understand this whole movement and dynamism, then I'll incorporate more videos in the coming lectures. Next session would be a brief one. It will be I guess I'll be getting 2 classes in the next week, in the upcoming week. So one will be a Q&A session, and we will be starting with a brand new topic, a brand new domain of physics that will be different from what we are learning here. So see you in the next class. Bye bye.